Monica Chad, who's the only cadet from Madhya Pradesh and Chhattisgarh who completed the basic mountaineering course, the advanced mountaineering course, and completed the Mount Telu Peak expedition. Give a huge round of applause. Sergeant Adarsh Singh received the award of the Best Mountaineering Cadet at HMI Darjeeling. Senior Under Officer Reena Thurve, while representing Madhya Pradesh and Chhattisgarh, she stood first in All India Para Basic Course. Now we have the Smart Cadets of Bhopal Group to receive the medals from the Honorable Chief Minister. Now we have the Indore Group to receive the medals from the Honorable Chief Minister. Indore Group. The senior cadets of Gwalior Group are now moving forward to receive the medals. Gwalior Group. On behalf of Jabalpur Group, now the senior cadets will receive the medals from the Honorable Chief Minister. Jabalpur Group. Now we will have the Sagar Group to receive the medals. Sagar Group. The cadets of Raipur Group will now march smartly to receive the medals from the Honorable Chief Minister. Raipur Group. I request Under Officer Rohan Rekwar to come on the stage. Under Officer Rohan Rekwar received the prestigious DG Commendation Card in Republic Day Camp 2024. We have the cadets who performed the Gangaur dance in Prime Minister's Rally 2024. Gangaur Dance Group.
I request the contingent commander of Madhya Pradesh and Chhattisgarh RDGC contingent, Sudipta Ghosh, and his team, please come forward to receive the medals of appreciation from the Honorable Chief Minister. Colonel Sudipta Ghosh. Major R.P. Chaudhary. Captain Namrata Sawant. Lieutenant Raj Kumar, RNV. Subedar Hira Singh. CHM Sukhpal Singh. Havaldar Hardeep Singh. GCI Aditi Bisen. GCI Akansha Pandey. GCI H. Baite. Now is the moment of the prestigious Chief Minister's banner presentation. We have 6 troops in our directorate. At the 6th position this year, we have Sagar Grove. At the 5th position, we have Gwalior Grove. At the 4th position, we have Raipur Grove. At the 3rd position, we have Jabalpur Grove. At the 2nd position, we have Indore Grove. And finally, we have the winner of the Chief Minister's banner, Bhopal Grove. Now I request the Honorable Chief Minister to please share some words of wisdom with all of us. सीएम बैनर कार्यक्रम के एनसीसी के ये बहुत अद्भुत आत्मीय और ऊर्जा और जोश से भरे इस पूरे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के साथी राव उदय प्रताप सिंह जी, मेजर जनरल महाजन साहब, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, हमारे एनसीसी परिवार के समस्त परिवारजन, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं माफ़ी चाहूँगा विलम्ब से आने के लिए, कुछ कार्यक्रमों के कारण से। और अब जैसा आप जानते हैं, आगामी समय में 1 माह बाद चुनाव की दस्तक एक तो हम सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं सच मानो मेरे को लगा कि मैं वापस अपने वो 30-40 साल पुराने दौर में पहुंच गया। उस परिवार में एनसीसी का वो सब कार्यक्रम में जब हिस्सा लेता था, 10 MP बटालियन के माध्यम से मेरे अपना स्कूली एनसीसी का जो पाठ्यक्रम वो पूरा हुआ था उज्जैन में। आज के इस अवसर पर हमारे बीच महाजन साहब ने बहुत अच्छे से, क्योंकि आमतौर पे ऑफिसर तो बनते हैं, लेकिन जिस ढंग से उनने ऊर्जा से सराबर होकर के एक एक बारीकियों को पकड़ते हुए और एक
एक होता है और एक हो करके उसमें डूब करके जो मजा देते हैं। तो महाजन साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा वास्तव में दिल से। और बच्चों ने भी क्या गजब किया है, मुझे जो जानकारी दी है, लगातार एक के बाद एक आप हमारे अपनी जितने अच्छे ढंग से प्रतिबद्धता के साथ आपने अपनी मुकाम को हासिल किया है। आप कहाँ थे, उससे कहाँ आए। आप मैं निश्चित मान सकता हूँ कि अगली बार हम और आप सब मिलकर के नंबर 1 के मुकाम पे रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। वैसे तो एनसीसी का ध्येय वाक्य हम सबको मालूम है, एकता और अनुशासन और संगठन का समर्पण। और उसमें सोने में सुहागा तब हो जाता जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो जिनके कारण से हम सब लगातार देश के अंदर आपके माध्यम से ऐसा हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सब ने देखा है। त्यौहार तो सब मनाते हैं, लेकिन अपनी दीपावली, अपना राष्ट्रीय पर्व सेना के साथ जो मनाते हैं, वास्तव में वो गौरवान्वित करते हैं लोकतंत्र को। और सच्चे अर्थों में बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं, जो हमारे सबके लिए आदर्श रूप में रहते हैं। ये जो हमारा नया दौर का नया समय है, खास करके दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। और सबसे युवा देश भारत में भारत को अपने बहुत मुकाम आगे तय करना है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये 75वां वर्ष चल रहा। अभी हमने 26 जनवरी को इस पे झंडा वंदन किया है। और ऐसे में एनसीसी के माध्यम से हमारे समूचे देश के युवा प्रेरणा पाए और उनके अपने माध्यम से जिस प्रकार से मन के भाव हम सबको मिलते हैं। ये जीवन एक बार मिलता है, लेकिन एक बार जीवन को मिलने से हमारा ये भाग्य है, उस भाग्य को सौभाग्य में बदलने का रास्ता अगर कहीं से मिलता है तो एनसीसी के माध्यम से मिलता है, ये मैं गारंटी दे सकता। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। अगर आज़ादी के बाद, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारी अपनी सेना का आबादी के आकलन में देखें तो 142 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश, लेकिन हमारी थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों मिला लें तो इनकी संख्या मात्र 13.5 लाख है। लेकिन 13.5 लाख हमारे लिए न केवल पूरे देश का विश्वास है, बल्कि दुनिया के सामने हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। ये हमको उनके अपने बुलंद हौसले से दिखाता है। और सेना की उस एक गौरवशाली परंपरा से रूबरू कराने का मार्ग कहीं से निकलता है या थोड़ा हम उसको समझ पाते हैं तो वो एनसीसी के माध्यम से होते हैं। और एनसीसी में लगातार जिस प्रकार से घुड़सवारी में 6 पदक जीतना, वाकई में बधाई देना चाहूँगा हमारे बच्चों को, जिनका ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और तीसरा स्थान आपने प्राप्त किया है। और खासकर छत्तीसगढ़ के 9 कैडेट का चयन हुआ है, इनमें 5 कैडेट्स का फाइनल इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। ये भी रिकॉर्ड है। मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा आप सबको भी। और ये बात तो सही है, एनसीसी के खास करके गणतंत्र दिवस के शिविर के दरमियान 28 राज्यों के और 8 केंद्र शासित राज्यों के साथ हम अपने जो समय गुजारते हैं, और वो खास करके उस समय गुजारे हुए का जो आपका अनुभव होगा वो जीवन में एक अलग प्रकार का आपका अनुभव होगा। और कुल मिलाकर के वर्तमान में हमारे सब ये जो 2274 कैडेट्स आपके साथ आए थे, और ऐसे में जो एक अलग अनुभव आया होगा। भौगोलिक रूप से हमारा देश बहुत अलग अलग प्रकार का है। कहीं हमारा रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान के आबादी या वहाँ के बसावट वाले लोग हैं, तो सुदूर हमारा नॉर्थ ईस्ट एकदम पहाड़ का और एक अलग प्रकार का। कभी कभी ये भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि हमारी कद काठी का भी अंतर पड़ जाता है। हमारी जो शरीर की रचना है, लेकिन अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। ये जो आनंद है हमारा अपना एकता का, ये आनंद हमको कई गुना ज़्यादा इस देश के अंदर अपनी आत्मीयता के उस रस से भी परिचय कराता है, उस मिठास का आनंद भी देता है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करने में कोई देश की अगर पहचान है, तो दुनिया में वो एकमात्र देश जो अपने देश उसको वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से जानता है। समूची वसुधा को, समूची पृथ्वी को वो अपना परिवार का हिस्सा मानता है और अपनी जीवन के माध्यम से
हम सब जानते हैं कि आज परमात्मा की दया से मानव जन्म हम प्राप्त करते हैं, तो मानव जन्म प्राप्त करने में हमारे द्वारा जीवन में और समूची प्रकृति के साथ हम कदम से कदम मिला के चलें। दुनिया की अच्छाइयों में हमारा देश और हमारा अपना समाज नंबर 1 का स्थान पाए। स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, और अब हम जीवन के सब क्षेत्रों में एक के बाद एक दिखाते जा रहे हैं कि हमारे लिए आज अपन जिस प्रकार से जिस मुकाम पे बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है, हम और आप सब मिलकर संकल्प करें। हम सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र होने के नाते से बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सबके आसपास हैं। कभी आप निगाह उठा के देखोगे तो बगल के पाकिस्तान से लेकर के कई ऐसे हमारे आसपास के देश मिलेंगे जहां पर लोकतंत्र एक सपना की तरह है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत अपने लोकतंत्र की न केवल ताकत दिखा रहा है बल्कि यहाँ की अच्छाइयाँ भी बांट रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके भरोसे से हम सब अगर भारत में आनंद के साथ सब क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सेना और एनसीसी सहित ऐसे ही संगठनों का बड़ा हमारा अपना परस्पर एक आभा मंडल है, जिसके माध्यम से दुनिया हमसे रूबरू हो रही है। और ऐसे बच्चे अभी जो दिख रहे हैं, कोई 9वीं का बच्चा है, मेरी जानकारी जो दी गई, वो अपने आप में क्या उसकी अपनी चाल और क्या उसकी अपनी कसावट आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से हो रही है, ये जीवन के नए पड़ाव पे पहुंच रहा है। मैं इन सब के प्रति मंगल कामना देता हूं, शुभकामना देता हूं, और जीवन में सब अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। सभी मित्रों ने जिनने जिनने पुरस्कार जीते उनको भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस वर्ड्स। हम आगामी वर्षों में प्रथम स्थान पर जरूर होंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ मेजर जनरल A.K. महाजन से कि वे कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मेजर जनरल A.K. महाजन ADG मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सर।